how you can solve the questions even by using have some knowledge. कैसे आप लोग क्वेश्चन सही सिलेक्ट भी करें और अपना स्कोर बढ़ाएं. We are building that solid knowledge which is required from the prelims and the mains perspective. Daily test at 9:30 AM plus explanations जो आपको दिए जाएंगे ना, that is very unique guys. Parak is mainly for those students who are in the advanced stage. Why not we make a target of practicing 7,000 plus MCQs, which is possible. 5 months, 150 days. आप हर दिन 50 क्वेश्चंस भी नहीं लगाओगे. और अगर वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड नहीं होता है तो यू कम टू मी एंड से सर ये प्रोग्राम आपका फेल. बट नॉट अ सिंगल स्टूडेंट हैज टोल्ड मी दैट. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू पल्स आईएएस. हाउ आर यू गाइज? सो आई थिंक 4-5 महीने, आई थिंक इट्स अबाउट 5 months, 4-5 months, yes, when we actually started the कर्म मॉडल. I think nobody would have a belief कि यार ये कर्म मॉडल सक्सेसफुल भी होगा नहीं होगा. But I told you one thing that I don't know about the result, but I can definitely say one thing. It's about the process. You follow the correct process and you will see the confidence in yourself. और अगर वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड नहीं होता है तो यू कम टू मी एंड से सर ये प्रोग्राम आपका फेल है. बट नॉट अ सिंगल स्टूडेंट हैज टोल्ड मी दैट. नॉट अ सिंगल स्टूडेंट. व्हाई? बिकॉज दिस प्रोग्राम, दिस प्रोसेस एक्चुअली वर्क्स. And it's a very simple thing that we have developed. I am not saying, oh, we have done something. No. It's not about that. It's simply about the organized learning that we have put it in a model known as Karma model. And what is that Karma model? I told you that K stands for building solid knowledge. Solid knowledge. So you can do it from your source. I have no doubt about that. How we are building solid knowledge? Through our video lectures, whether it be for pre or mains, and Pulse handwritten notes. Again for pre and mains. We are building that solid knowledge which is required from the prelims and the mains perspective. That is the knowledge that we wished for. कि भैया ये हमें करना है. Then once the students are filtering out, coming to the next stage, it is about building the objective aptitude for prelims and subjective aptitude for mains. So this is about the prelims right now I'm talking about. तो हर एक स्टूडेंट को उसी टॉपिक का, जैसे मैं बोलूं नेशनल इनकम अकाउंटिंग का लेक्चर, वही नेशनल इनकम अकाउंटिंग का हैंड रिटन नोट्स एंड उसी नेशनल इनकम अकाउंटिंग के 25 एमसीक्यूज उसी टाइम पे. डोंट यू थिंक कि आपका जो कंसेप्चुअल लर्निंग है दैट इज रीइंफोर्स्ड, आपका कॉन्सेप्ट और सॉलिडिफाई हो रहा है? यस और नो? अब लेकिन real aptitude is going to start now in the month of December. In the month of December, here starts the real aptitude. Sir, what is that real aptitude? Practicing now the questions in the most analytical manner. Practicing full mock test. ये अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. Whether it be सिर्फ स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व है, कुछ स्टूडेंट्स पूरे के पूरे प्रीलिम्स फनल प्रोग्राम में. तो उन लोगों के लिए भी ये जो रियल एप्टीट्यूड है, इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस टाइम पीरियड. लेट मी टॉक अबाउट दैट व्हाट आई हैव प्लान्ड फॉर यू इन द मंथ ऑफ दिसंबर. वी बिलीव दैट रियल एप्टीट्यूड फॉर द प्रीलिम्स कैन बी लर्न थ्रू 3 ways. वन, डेफिनेटली जो हम डेली 25 एमसीक्यूज दे रहे हैं, यस इट इज, आई वुड से, मोर अबाउट reinforcing the concepts, कि concepts हम learn करवाएं. But more importantly कि अब exam type के questions हम practice करें. That is, I mean it as a real aptitude. उसके लिए we are coming up with the Parak, which is our full mock test series. Full mock test series that comprises of 16 full mock test. 16 फुल मॉक टेस्ट, हर दूसरे हफ्ते में फुल मॉक टेस्ट, जिसमें 11 GS 5 CSAT स्टार्टिंग फ्रॉम 14 दिसंबर. सर अब ये परख किन के लिए होगा? देखो ऑब्वियसली जो प्रीलिम्स फनल में है दे कैन डेफिनेटली गिव इट, बट परख is actually meant
परख इज एक्चुअली मेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस कंप्लीटेड है, जो चाहते हैं कि बस मेरा फुल मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग में रिवाइज करता चल। उनको नहीं जरूरत है सर ये कॉन्सेप्ट लर्निंग, दे हैव अ गुड कॉन्सेप्ट। सो परख इज मेनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इन द एडवांस्ड स्टेज, who are in the advanced stage of their preparation. That is that parak phase. Clear? लेकिन सर वो स्टूडेंट्स जिनको अब अपनी डेली प्रैक्टिस करनी है, कि डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, उनके लिए वी आर ब्रिंगिंग IPGP 3.0. This is our third edition, intensive prelims guidance program. IPGP intensive prelims guidance program. This is going to be intensive guys, ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, intensive prelims guidance program. So we have this IPGP जिसमें आपका डेली टेस्ट होगा, डेली टेस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस एज पर द सिलेबस जो आपको हम दे रहे हैं, एज पर द शेड्यूल, डेली टेस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस। एंड लेट मी टेल यू, ना मैं आपको 7 बजे उठाऊंगा ना 8 बजे, टेस्ट कंडक्ट होगा 9:30 पे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ। सो डेली टेस्ट एट 9:30 AM प्लस एक्सप्लेनेशंस जो आपको दिए जाएंगे ना, दैट इज वेरी यूनिक गाइस। दिस टाइम वी आर अपग्रेडिंग आवर एक्सप्लेनेशंस, नॉट जस्ट बाय गिविंग यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स, नो, वो है दिस टाइम व्हेन यू लुक एट द एक्सप्लेनेशंस, आपको रियलाइज होगा कि अरे यार ये एक्सप्लेनेशंस जब हम देख रहे हैं, दैट्स अ यूनिक फैक्टर दैट हाउ यू कुड हैव अप्रोच्ड दैट क्वेश्चन, द माइंडसेट दैट वी आर बिल्डिंग, that mindset we want to build, that how you can solve the questions even by using have some knowledge. Third, sir, weekly doubt discussion rather than the daily discussion guys. I believe कहीं ना कहीं daily discussion का शायद आपके पास टाइम ना हो, इसीलिए what we have come up is weekly doubt discussion of the subjects. That there would be a 2-hour Zoom meeting, Google meeting, or even you can come to the offline, you can meet to me directly and discuss your doubts. And this IPGP will comprise of GS plus CSAT both. इस IPGP का schedule ये है that from 29 December till 28th Feb, you will complete your daily test. Then for 15 days, we'll be having only current affair test, 1st to 15th. And then from 15 December till 3rd of May, you have full mock test. It is planned like this, IPGP. This is going to be intensive. But this full mock test, Parak full mock test is made for those students who are like, sir, मेरा ये सब कुछ डन है, मुझे नहीं करना, सर मुझे तो आप सिर्फ सिमुलेटर्स दे दो UPSC लेवल के। We'll be coming up with this. मैं आपको एक आपको टेस्ट दिखाता हूं। You would be surprised. You see, this is the test of the Parak second full mock test that we conducted last year for prelims 2025. Look at the question level, and I'm pretty sure you won't find a single question outside. Look at the question level, how we have tried to check your concepts. आपको 3 पर्सन दिए, फिर बोला कि विथ रेफरेंस टू द अप्रोचेस कंसिडर द फॉलोइंग, पर्सन Y and Z वुड बी कंसिडर्ड एम्प्लॉयड। मतलब एक क्वेश्चन में पढ़ने में हमने कितना टाइम लगाया। हम सिर्फ ये नहीं देखना चाहते कि आपकी नॉलेज कितनी आती है, हम ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यार ये क्वेश्चन अगर आपको देख के टफ लग रहा है तो यू कैन ट्राई इट लेटर। डू नॉट गिव द 7 minutes 6 minutes टाइम इन द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि कई बार आपका एक सेट ऐसा होगा जिसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही डिफिकल्ट होते हैं। तो वी वांट टू क्रिएट दैट माइंडसेट, गाइस, कि कैसे आप लोग क्वेश्चन सही सिलेक्ट भी करें और अपना स्कोर बढ़ाएं। मतलब सिर्फ स्कोर से है, ये माइंडसेट बिल्डिंग करना जरूरी है। लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। सो द क्वेश्चंस व्हिच यू आर सीइंग, यू सी स्टेटमेंट 1 2, चलो ये तो कॉमन है ना। द प्रोग्रामेबिलिटी फीचर ऑफ डिजिटल रुपी, फिर किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कर सकते हैं। लुक एट दिस 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन। आपको टफ लग रहे थे इस बार जब आए, हम लोग 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी काफी टाइम से दे रहे हैं। डिटेल्ड क्वेश्चन, देन यू लुक एट द इंडियाज प्रिपेयर्डनेस एनालिटिकल क्वेश्चन, देन यू लुक एट दिस क्वेश्चन कंडीशन बेस्ड, कि आपने 2 कंडीशन लगा दी और बोला कि कंसिडर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बिल्स, व्हिच ऑफ द अबव बिल्स फुलफिल बोथ द कंडीशंस।
लुक एट दिस, देन यू गिव डिस्क्रिप्शन दिया है, फिर आपकी स्टेटमेंट्स है 3, आप बताओ। दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव प्रिपेयर्ड, और यही लेवल आपको इस बार परख के फुल मॉक टेस्ट में मिलने वाला है, यही लेवल। दिस इज द सिमुलेटर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो अगर आप लोगों का सिलेबस रेडी है और आपको लगता है जो स्टूडेंट्स है कि यार बस मेरा ना प्री की प्रैक्टिस होते रहे हर 14 डेज में, द परख इज मेंट फॉर यू। बट अगर आप चाहते हैं कोई डिसिप्लिन, आपका सिलेबस भी कंप्लीट और डिसिप्लिन वे से मेरे को टेस्ट लेते रहे, देन इट इज IPGP 3.0, दैट इज इंटेंसिव प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम। और इसके अलावा थर्ड वे ऑफ बिल्डिंग एप्टीट्यूड इज PYQ। PYQ से आप काफी ज्यादा चीजें सीखते हैं, आपको पता रहता है कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लाइक दैट, और PYQ का रिपीटेशन भी रहता है। बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है आप सोचो कि सिर्फ अपनी जिंदगी PYQ पे लगा लो। अगेन आई एम रिट्रेटिंग कि आज आप YouTube पे जाते होगे तो PYQ माइक्रो थीम्स। अगेन आई एम टेलिंग यू, यस इट इज इंपॉर्टेंट, बट it is not an sufficient condition to clear your prelims. It is an essential condition but not a sufficient. तो कई बार आपको यह बताया जाता है कि PYQ कर लो। अरे PYQ नहीं करना है। अगर आप 7000 MCQ नहीं करके जा रहे हो, जो हम इन तीनों टेस्ट के थ्रू कवर करेंगे, 7000 MCQs अगर आप नहीं करके जा रहे हो, लेट मी टेल यू, आपका चांसेस ऊपर नीचे प्रीलिम्स क्वालिफाई। आप श्योर नहीं होगे कि मेरा प्रीलिम्स निकलेगा ही या नहीं निकलेगा। इट्स नॉट अबाउट 7000 MCQs यू हैव टू प्रैक्टिस। हां, कई लोगों का 5000 प्लस में है, कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल, बट दे हैव मेड एन अटेम्प्ट टू प्रैक्टिसिंग दैट क्वेश्चंस। व्हाई नॉट वी मेक अ टारगेट ऑफ प्रैक्टिसिंग 7000 प्लस MCQs, व्हिच इज पॉसिबल। इट्स नॉट डिफिकल्ट गाइस। 100 क्वेश्चंस पर डे अगर आप लगाते हो 70 डेज, दैट्स इट। आपके पास दिसंबर से लेके मई मंथ है, मई में हटा देता हूं 5 मंथ, अप्रैल तक 5 मंथ 150 डेज। आप हर दिन 50 क्वेश्चंस भी नहीं लगाओगे क्या, बताओ। और 50 क्वेश्चंस लगाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता ना कि आप प्रैक्टिस उधर ही, मतलब उसको लर्निंग की तरह भी यूज करो ना, कि क्वेश्चंस को देखा, एक्सप्लेनेशन देके आगे बढ़ते। इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट कि मैं टेस्ट ही लगाऊं मैं, नो नो, इट्स ऑल्सो अबाउट कि अच्छा मैं क्वेश्चंस देखता जा रहा हूं, मैं लर्निंग, जो जो मेरे को नई चीज मिलती जा रही है मैं सीखता जा रहा हूं, दैट्स इट। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द एप्टीट्यूड, एंड आई रियली विश कि दिसंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, एप्टीट्यूड शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर यू गाइज राइट नाउ। सो दैट्स इट गाइज, टेक केयर, स्टडी वेल।